जी बेटा आप न्यू टॉपिक नाल स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अमीनो एसिड्स। सो आप अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन बारे करांगे कि व्हाट इज़ देयर क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द अमीनो एसिड्स एंड हाउ दे विल फर्दर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, वैसे तो प्रोटीन्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ what are the amino acids and how they will further behaving the different kind of functions as well as they are having the different kind of classification. So we will talk about that. So amino acids ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? Amino acids we can say that is the main basic unit or the smallest unit which will further lead to the formation of a large macromolecule that are called to be as the proteins. ठीक है, सो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन ਲਈ कह लो कि जो छोटी यूनिट अपने को अवेलेबल है दैट इज़ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? अमीनो एसिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो we can simply classify that कि these are the nitrogenous compound. Nitrogenous compound है as they are having the amino group on the one side and carboxyl group on the other side. कि ये ਜਿਹੜੇ नाइट्रोजनस कंपाउंड ने दे आर हैविंग बोथ एसिडिक ग्रुप एज वेल एज द बेसिक ग्रुप। ठीक है, सो एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप भी और बेसिक ਜਿਹੜਾ ਵਾ अमीनो ग्रुप भी कह लो कि अवेलेबल है। ठीक है, वेयर एज जो आर है, आर इज़ द साइड चेन जो कह लो कि दैट बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ that will lead to the formation of a different kind of amino acids that is totally depend upon the side chain कि what kind of side chain it is having, whether it is of simple hydrogen, whether it is of simple hydrocarbon chain or the aromatic ring like structure, whether polar group, whether non-polar group, whether positively charged group, whether negatively charged group, like in that way. So that means ਜਿਹੜਾ R group है वो vary कर सकता है, it is having a very high range of variation. ठीक है, सो दैट इज़ टोटली डिपेंड कि ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਦ ਕਾਰਬਨ this central carbon on which the four different things are attached, four different things in the sense one is having the carboxyl, R group, amino group as well as the hydrogen. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਲਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਦੀ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ज़्यादातर जिन्ने भी अमीनो एसिड्स ने all these kind of amino acids are having the symmetric type of alpha carbon। क्या जरा alpha carbon है it is of symmetric in nature, symmetric in the sense कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ groups ਨੇਗੇ they are all are different कि ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ groups ਨੇਗੇ they are all are different one। वेयर एज इन केस ऑफ ग्लाइसिन ही एक ऐसा एक पर्टिकुलर केस है जिस विच कह लो कि एक सेम चीज़ की रेपिटेशन होती है, वो सेम चीज़ की है दैट इज़ ऑफ हाइड्रोजन। लाइक जो जनरल स्ट्रक्चर है, इफ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइसिन, सो आर की जगह तो इतने की होएगा हाइड्रोजन। सो दैट मीनस आ भी चीज़ सेम है, आ भी चीज़ सेम है। सो दैट कार्बन विल बिकम द एसिमेट्रिक कार्बन इन केस ऑफ ग्लाइसिन। सो ये जस्ट जनरल एक रेयर केस है अमीनो एसिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਾਈਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो कि अपने को एसिमेट्रिक कार्बन है, वेयर एज इन अदर अमीनो एसिड्स दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द सिमेट्रिक टाइप ऑफ कार्बन, अल्फा कार्बन बेसिकली। ठीक है, क्लियर है जी इसका स्ट्रक्चर? सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर the amino acids obtained by the hydrolysis of the proteins differ in respect to their R side chain। ठीक है, सो जिस जगह के जी अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ ने वो भी वेरी करती हैं विद दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आर वेरीज। नैक्सट इज़ द क्लासिफिकेशन की अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स को नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन के कह लो कि आप डिवाइड कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं वैदर द प्रेजेंस ऑफ polar group, non-polar group, whether the presence of number of carboxyl group, like in that way. So different number of classification है
अमीनो एसिड सी, बट मोस्ट कॉमनली जी आप क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं ओके दैट मीनस कि दे आर कंसिस्टिंग ऑफ पोलैरिटी ऑफ द साइड चेन कि जी साइड चेन की पोलैरिटी है वो बेसिस उत्ते इन्हों क्लासीफाई भी किया जाता वा। मेन जी ये क्लासीफिकेशन अपने को चलती है। सो वॉट आर द मेन फंडामेंटल्स। सो ऑब्वियस है रजे कि जेडे नेम नेगे अमीनो एसिड्स से दैट विल इम्प्लाइज अमीनो एसिड्स आर कंपाउंड दैट कंटेन द अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये तो मैं पहले दस चुकी हाँ। दीज ग्रुप्स आर एक्चुअली प्रेजेंट एज द NH3 पॉजिटिव एज वेल एज द COO negative respectively, and they are classified as the alpha, beta, gamma, etc. Amino acids according to the carbon that bears the nitrogen। ठीक है। सो लाइक हेयर जी अल्फा बीटा गामा की आप गल कर रहे थे। सो ऑब्वियस है जो कार्बोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल जस्ट नैक्सट वाला कार्बन होएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड टू बी एज ए अल्फा। दैन उस तो अल्फा तो बाद वाला जो नैक्सट होएगा दैट विल बी कॉल्ड टू बी एज ए बीटा। दैन बीटा के बिल्कुल जस्ट नाल वाला होएगा दैट इज़ कॉल्ड टू बी एज ए गामा, लाइक इन दैट वे। ठीक है ना। सो इस तरीके इन्होंने क्लासीफाई किया जाता अल्फा बीटा गामा। सॉरी। सो नैक्सट है अपने को मेजर 20 की अमीनो एसिड्स नेगे, so which plays a major role for the further biosynthesis of the proteins also। ठीक है। एंड कह लिए कि उन्होंने दे बेसिस उत्ते ही प्रोटीन के स्ट्रक्चर जोड़े ने वो बेस कह लो कि लैबोरेटरी फॉर्म के एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है रजे कि अपने को कल्ले यही 20 अमीनो एसिड्स होन। सो वी आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द अमीनो एसिड्स विच आर स्टिल अननोन टू अस। सो मोर दैन 700 अमीनो एसिड्स जोड़े ने नैचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जिस दे विचों 20 जोड़े अपने कह लो कि इंटरनली नॉर्मल एग्जिस्टेंस या नैचुरली अपने को अवेलेबल ने। ठीक है। सो बी जेडे अमीनो एसिड्स ने दे आर द बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स एंड ऑल दीज आर द अल्फा अमीनो एसिड्स। इन्होंने आप अल्फा अमीनो एसिड्स कह दें। और ये जोड़े बी अमीनो एसिड्स ने जोड़े प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस के विच हैल्प करते हैं या उसकी फॉर्मेशन के विच हैल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी एज ए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। उन्होंने आप स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स कह दें विच विल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है। वेयर एज दोज अमीनो एसिड्स विच आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड टू बी एज ए नॉन स्टैंडर्ड। उन्होंने अपन नॉन स्टैंडर्ड कह देना है। स्टैंडर्ड केड़े हो गए विच विल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है। या हेल्प इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, सो दे आर कॉल्ड टू बी एज ए स्टैंडर्ड। वेयर एज इन अदर वे विच आर नॉट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स, सो दे आर कॉल्ड टू बी एज ए नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। सो दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप अटैच टू द अल्फा कार्बन। क्लियर। और अपने को रजे दो फॉर्म्स एग्जिस्ट कर दिया नहीं। वन इज़ द नेचुरल फॉर्म, नॉन आयनिक फॉर्म है नेचुरल फॉर्म, एंड वन इज़ अ फॉर्म विच एग्जिस्टिंग इन वाटर। वाटर दे विच कह लो कि नॉर्मल फॉर्म तो थोड़ी हटके जी फॉर्म एग्जिस्ट कर दी है, दैट फॉर्म इज़ बेसिकली कॉल्ड टू बी एज अ ज्विट्राइन फॉर्म। सो रजे जिदा ही अमीनो एसिड्स को कह लो कि वाटर दे विच डिजॉल्व ऑन किया जाता है, सो दैट विल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ज्विट्राइनिक फॉर्म। ठीक है। सो ज्विट्राइनिक फॉर्म के ऑब्वियस है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन इट हैज़ टू बी रिलीव्ड एंड दैट विल लेट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ negative charge on the oxygen, and here also that hydrogen which is relieved from here they get attached towards this amino group and they are forming the NH3 positive charge, so that will forming the zwitterine form. ठीक है। next is the L or the D forms। L or D forms बहुत सौखी हैं, नहीं कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। just depend upon the amino group के position of amino group that will decide whether it is of L form, whether it is of D form. If the amino group is on the left hand side, that is termed to be as a L amino acids, and if it is on right hand side, then it is termed to be as a D amino acids. So here we are having a structure of the alanine। so जी side chain है R chain है, that is the methyl group। ठीक है। कल्ला methyl group है। so जेड़ा कि alanine का structure है, so obvious है amino जो left hand side that become the L-alanine, if it is on right hand side so it become the D-alanine। same
जस्ट डिफरेंट हो स्ट्रक्चर्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬॉल एंड स्टिक वाला हो गया नॉर्मल हो गए ठीक है ਉਹ स्ट्रक्चर्स ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ L और D ਐਲੈਨੀਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੇਬਲ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਅਲਫਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲ ਗਰੁੱਪ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੇਬਲ ਟੂ ਬੀ ਐਜ਼ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ label with the 1 2 3 4 5 so we have to start with the carboxyl group। so carboxyl group तो start करके the first carbon second carbon and so on जितने carbon अपने को available है so we can number out that। सो अपने को रजे 20 अमीनो एसिड्स से 20 अमीनो एसिड्स कह लो कि अपने को साइड चेन के उत्ते वेरी करते हैं। सो साइड चेन मैं थोड़ा पहले दस चुकी हाँ दिस वन आर ग्रुप जोड़ा वा वो वेरी कर सकता लाइक इन केस ऑफ ग्लाइसिन वी आर हैविंग द हाइड्रोजन जो मैं थोड़ा पहले भी दसिया सीगा। सेम ग्लाइसिन जोड़ा स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है इट इज़ ओनली इन द टेबल दैट इज़ द ए कायरल वन। ए कायरल वही सेम चीज़ होगी कि जोड़े कार्बन है अल्फा कार्बन के आले दुआले दो सेम ग्रुप्स की प्रेजेंस होना उन्होंने आप ए कायरल कार्बन कह दें ठीक है। सो वेयर एज इन केस ऑफ एलेनिन दे विच जिहड़ा आर ग्रुप है दैट इज़ द मिथाइल। सो थोड़े जे तुहानूं जनरल याद होने चाहिए कि इहदा स्ट्रक्चर किवें दा है कि इहदा नहीं है ताकि तुसीं बाकी दे अमीनो एसिड्स नूं डिस्टिंग्विश कर सको। लाइक एलेनिन दे आर हैविंग द मिथाइल ग्रुप ठीक है एंड वेलाइन दे आर हैविंग द इथाइल ग्रुप क्लियर सॉरी इथाइल आ गया प्रोपाइल कहना सीगा सॉरी बेटा I have said about the ethyl it's not the ethyl it's propyl। like leucine they are having the CH2CH CH3 the twice then further they are having the same isoleucine in case of they are having the simple hydrocarbon chain that is CH3CH CH2 CH3। then further is the serine जो है हुण पहला वाले जिन्ने आपां अमीनो एसिड्स की गल कीती है उन्होंने कंपैटिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज दे आर हैविंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद दैम। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स दैट इज़ द serine। then further same threonine they are also having the hydroxyl group clear and then next is the sulfhydryl group containing amino acids so that is the cysteine। so they are having the sulfhydryl group with them CH2SH। then further is the methionine is also having the sulfhydryl group clear। then further is the aspartic acid that is totally depend upon the carboxyl group के carboxyl group the whole extra presence होवे। so here we are having CH2COO negative so that becomes the aspartic acid। so same we are having the glutamic acids ठीक है। then we are having the asparagine which is having the amino group। पहले वाले च आपां कार्बोक्सिल ग्रुप दे कीते सी हुण इत्थे की अमीनो ग्रुप एक्स्ट्रा वा सो दैट बिकम्स एस्पैरेजिन सेम ग्लूटामिन ठीक है। then further is lysine clear then is the arginine also they are having the three basically amino group 2 are here and 1 are here ठीक है। so next is tryptophan which is the aromatic ring like structure। then further proline also histidine also phenylalanine also tyrosine also ठीक है। so that means we can classify the amino acids on the basis of the side chain आ substitute ਜਿਹੜੇ ਵੇ so ਉਸ ਦੇ basis ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। one are the non polar aliphatic aromatic then further polar uncharged positively charged negatively charged। ਜਿਹੜੇ non polar ਨੇ they are 7 in number aromatic they are 3 in number polar which are 5 in number positively charged they are of 3 number and negatively charged that is of 2 in number।